So today in statistics, standard 11, chapter number 1st, collection of data, multiple choice questions. Who used the German word statistics for the first time? So the word statistics first given by Gottfried Eichenvolle C is the correct answer. Gottfried Eichenvolle was the German mathematician, and basically the word statistic, this word is given by Gottfried Eichenvolle. अभी तो स्टैटिस्टिक्स का स्पेलिंग चेंज है, लेकिन पहले ये वर्ड वर्ल्ड को देने वाले थे गॉडफ्रीड एकेनवोल. सो आंसर इज सी, गॉडफ्रीड एकेनवोल. Who was the giant of initial result of probability theory among the following? In previous lecture we discussed about there are two giants who give probability theory, Laplace and Gauss. But in this option only Laplace is given, so our answer is B, Laplace. So B is the correct answer. Now the most IMP question which already we discussed in past lecture. Who was the founder of mathematical statistics? So Carl Pearson was the founder of mathematical statistics, and it is called father of mathematical statistics. Mean, mode, median, all this theory given by Carl Pearson. So who was the founder of mathematical statistics? That is Carl Pearson. So answer is A, Carl Pearson. Out of the following, which one is an example of primary data? Here we have to find out the example of primary data. So when an investigator himself or a numerator appointed by him visit and collect a data first time, it is called primary data, that is original data. So data collected by NSSO, National Sample Survey Organization, it is central government organization who collected a data about population, literacy rate, unemployment in India. So that is primary data. So answer is D, data collected by NSSO. Which one of the following is an example of qualitative data? So qualitative data, a data which is non-numeric, you cannot a data in measured in terms of numbers, it is qualitative. So A, income category, because income category, high category, medium category, low category. Production is measured in terms of numbers. Age is also in numbers. Height of person is also numbers. So these are quantitative data. But income category, high, medium and low, it is non-numeric data and it is called qualitative data, and you can also call attribute. So A is the correct answer, income category. Which one of the following is the true for secondary data? So use after careful verification. So this is secondary data use after careful verification, because whenever we used secondary data, so who collected this data and where collected a data, that is important for you. सेकेंडरी डेटा आपका खुद का नहीं, किसी और ने फाइंड किया है. तो किसने फाइंड किया है, कहाँ से फाइंड किया है, उसका केयरफुली वेरिफिकेशन करना चाहिए, फिर आपको यूज करना चाहिए. सो आंसर इज बी, यूज
After careful verification, which one of the following is true for primary data? For primary data, we have to find. So A is the correct answer. Primary data is always more reliable as compared to secondary data. So A is the correct answer because a primary data collected by investigator himself or a numerator. So compared to secondary data, primary data is more reliable. So answer is A. Which of the following statement is true? Here we have to find which is true. The data collected by direct inquiries may be more accurate. The data collected by direct inquiry may be less accurate. The data collected by direct inquiry may not be reliable. The data obtained through email is known as the data obtained by direct inquiry, and we have to find true statement. So A is thus true. The data collected by direct inquiry may be more accurate. That is correct. So answer is A. The data collected by direct inquiries may be more accurate. Which of the following is the proper method of getting supplementary information about personal characteristics of the respondents? So in direct inquiry, due to face-to-face inquiry, we can solve the doubt of respondents, and here we also collect a supplementary information. So you can collect a supplementary information by direct inquiry. So B is the correct answer, direct inquiry. So answer is B, direct inquiry. Number 10, which method will be costly when the number of respondents are more and spread over the large area? So when the respondents are spread over the large area, at that time costly. So direct inquiry is very costly because in direct inquiry lots of energy, lots of money, lots of time is required. So when the field of very wide and respondents are spread over the large area, direct inquiry is most costly. So C, direct inquiry. Now section B, answer in short, 1 marks question. Who was the founder of Indian Statistical Institute? So in previous lecture we discussed about founder of Indian Statistical, that is PC महालनोबिस. इंडिया के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स का जो ग्रोथ हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ, उसके अंदर जिसका जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, सो वो है पीसी महालनोबिस. तो पीसी महालनोबिस वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट. उन्होंने ISI स्टार्ट करवाया था और वो कैलकाटा के अंदर उन्होंने स्टार्ट करवाया था. सो प्रोफेसर, ये IMP क्वेश्चन है, आपको कर लेना चाहिए. प्रोफेसर PC महालनोबिस एस्टैब्लिश्ड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI. Define population. Population is defined as the aggregate of all units covered under the field of inquiry. So, population का मतलब बेसिकली क्या है? A unit under study is called population. Whenever we have to collect any information, so at that time the unit under study, that is population. आपको जिसकी स्टडी करनी है तो वो आपके लिए पॉपुलेशन हो जाएगा. जैसे क्लास टीचर को अटेंडेंस लेनी है
तो उसके सामने जो स्टूडेंट है वो पॉपुलेशन हो गए, अंडर स्टडी है तो वो पॉपुलेशन है। आपको मोबाइल लेना है तो आप मोबाइल शॉप पर जाओगे, सो एट दैट टाइम द यूनिट ऑफ मोबाइल दैट इज अंडर स्टडी, तो वो आपके लिए पॉपुलेशन हो जाएगा। स्टेशनरी चाहिए तो आप स्टेशनरी शॉप पर जाओगे तो स्टेशनरी इज अंडर स्टडी, तो वो आपके लिए पॉपुलेशन हो जाएगा। सो अ यूनिट अंडर स्टडी दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। डिफाइन सैंपल। A sample is defined as a representative part of the population selected on the basis of some definite criteria. Means a unit selected from a population, that is called sample. Whenever we have to collect a information very quickly, we can use a sample. जब भी आपको कोई क्विकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो आप सैंपल का यूज करते हो। जैसे स्टेशनरी लेने के लिए जाते हो तो दुकान की सभी स्टेशनरी चेक नहीं करते, उसमें सैंपल ही लेते हो। जैसे मैंगो चाहिए तो मैंगो की जो एक बैग है बॉक्स वो 9 kg या 10 kg का है, तो अब 9 kg या 10 kg चेक नहीं करते, लेकिन उसमें से 1 और 2 मैंगो निकाल कर चेक कर लेते हो, दैट इज कॉल्ड सैंपल। सबसे ज़्यादा सैंपल आपकी मम्मी यूज़ करती है जब वो खाना बनाती है, तो दाल सब्जी जो बनाया है उसके अंदर प्रॉपर सॉल्ट प्रॉपर है, चिली प्रॉपर है, उसको देखना है, तो एक चम्मच लेकर वो टेस्ट कर लेती है, दैट इज कॉल्ड सैंपल। जब आप बीमार होते हो और डॉक्टर बोलता है भी आपको ब्लड टेस्ट कराना है, तो जब आप लेबोरेटरी में जाते हो, सो एट दैट टाइम योर ब्लड इज अंडर स्टडी, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। लेकिन वो लेबोरेटरी का जो डॉक्टर है वो पूरा ब्लड नहीं निकालता, वो आपके अंदर से 5 ml 10 ml लेता है और फिर इन्वेस्टिगेशन करता है, तो दैट इज कॉल्ड सैंपल। अ यूनिट सिलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन दैट इज कॉल्ड सैंपल। जैसे क्लास के अंदर 45 स्टूडेंट है और उसमें से 5 स्टूडेंट को आपने सिलेक्ट कर दिया तो वो आपके लिए सैंपल हो जाएगा। Define qualitative data. The collection of observation obtained with respect to attribute is called qualitative data. Example, data of gender, educational qualification of workers. So qualitative, mainly there are 2 types of data. A data which is numeric form, that is called quantitative data. Age of student, height of student, marks of student, that is quantitative data. And a data which is non-numeric, it is called qualitative data. तो ऐसा कोई भी डेटा है जिसको आप न्यूमर के अंदर मेंशन नहीं करते हो तो वो क्वालिटेटिव डेटा या उसको एट्रीब्यूट भी बोल सकते हो। लाइक डेटा अबाउट जेंडर, दैट इज क्वालिटेटिव। लव, इमोशन, ऑनेस्टी, क्लेवरनेस, यू कैन नॉट अ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। कोई स्टूडेंट ब्रिलियंट है तो उसकी क्लेवरनेस आप ऐसा कहते हो कि बहुत होशियार है, अच्छा है, उसके मार्क्स है वो आप नंबर्स के अंदर दे सकते हो, तो वो न्यूमेरिकल डेटा है, क्वांटिटेटिव डेटा है। लेकिन उसकी जो क्लेवरनेस है यू कैन नॉट अ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव। लाइक एजुकेशन क्वालिफिकेशंस of workers, that is qualitative data. Define quantitative data. The collection of observation on numeric variable. Numerical variable is called quantitative data. Example, data of monthly income, age of workers. So some of the data which is in numeric form, जब आप कोई डेटा कलेक्ट करते हो वो न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर है तो वो क्वांटिटेटिव डेटा हो जाएगा। जैसे किसी की मंथली इनकम तो 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, तो आपको नंबर्स मिलेगा।
एज ऑफ वर्कर्स 15, 16, 17, 45, 75, तो आपको नंबर्स में मिलेगा, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा। तो आपको क्या याद रखना है? अ डेटा विच इज नॉन न्यूमरिक, जो नॉन न्यूमरिक है वो क्वालिटेटिव डेटा है, एंड अ डेटा विच इज इन न्यूमरिकल फॉर्म, that is quantitative data. The collection of observation on numerical variable, it is called quantitative data, like height of student, marks of student, percentage of student, that is quantitative data because it can be measured in terms of numbers. Define primary data. If any authorized agency or investigator collect the data for the first time, it is called primary data. Population Survey of India by Registrar General and Census Commissioner of India. Primary data. So any authorized agency or investigator collect the data for the first time, it is called primary data. Means whenever we have to collect any data, at that time investigator himself or a numerical appointed by him collected a data for the very first time. It is called primary data and it is original data. अगर कोई ऑथोराइज एजेंसी है या इन्वेस्टिगेटर है जो डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं, दैट इज प्राइमरी डेटा. दैट इज करेक्ट आंसर. दैट इज प्राइमरी डेटा. लाइक population study, this data is collected by governor, central government collected a data. वो एक ऑथोराइज एजेंसी NSSO को रखेगी, वो कलेक्ट डेटा करेगी और उसको पब्लिश जब करना है तो रजिस्ट्रार एंड जनरल सेंसस कमिश्नर उसको पब्लिश भी कर देगी. तो उन्होंने डेटा खुद कलेक्ट किया है तो उनके लिए प्राइमरी डेटा हो जाएगा. लेकिन जब पॉपुलेशन की स्टडी हो जाएगी और वो डेटा न्यूज़पेपर में आएगा या न्यूज़ चैनल में आएगा, तो वहां से अगर आप डेटा लेते हो तो सेकेंडरी होगा क्योंकि आपने खुद कलेक्ट नहीं किया है. डिफाइन सेकेंडरी डेटा. If an individual of institute makes the use of the information collected by some others, individuals or institute, it is called secondary data. Example, population data collected by government but used by students, author of books, etc. So secondary data, when we collected a data from primary source, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा. जब भी आप डेटा कोई प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट करते हो तो वो आपके लिए सेकेंडरी डेटा हो जाएगा बिकॉज इट इज कलेक्टेड बाय अदर्स एंड दिस डेटा इज यूज्ड बाय इन्वेस्टिगेटर. वो डेटा आपने नहीं, किसी और ने कलेक्ट किया है और वो डेटा का आप यूज कर रहे हो तो आपके लिए सेकेंडरी डेटा हो जाएगा. जैसे इंडिया की गवर्नमेंट पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करेगी तो उनके लिए प्राइमरी है, लेकिन जब बुक्स के अंदर आएगा या न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल में आएगा तो अगर कोई स्टूडेंट यूज़ करेगा कि इंडिया की पॉपुलेशन 137 करोड़ है या 140 करोड़ है तो आपके लिए वो सेकेंडरी डेटा हो जाएगा. स्टेट द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा. सो देयर आर 3 मेथड फॉर कलेक्टिंग अ प्राइमरी डेटा. One is a direct inquiry, second is an indirect inquiry, and third is a method of questionnaire. The method of collecting primary data are as follows: direct inquiry, indirect inquiry and method of questionnaire. वैसे और हो सकता है, मोबाइल थ्रू भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ईमेल थ्रू भी आप कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन mainly there are 3 methods for collection of primary data: direct inquiry, indirect inquiry and method of questionnaire. और क्वेश्चनरी के अंदर 2 हैं, बाय पोस्ट एंड बाय अ न्यूमरेटर.
डायरेक्ट इंक्वायरी के अंदर आप खुद जाते हो और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो. इनडायरेक्ट इंक्वायरी में यू कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी. और मेथड ऑफ क्वेश्चनरी, आपको जो भी क्वेश्चन रिलेटेड लगते हैं उसका लिस्ट ऑफ क्वेश्चन रेडी कर दो और रिस्पोंडेंट से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो. सो मेनली देर आर 3 सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा: डायरेक्ट इंक्वायरी, indirect inquiry, and method of questionnaire. Now state the definition of statistics given by Croxton and Cowden. This definition we discussed in our previous lecture. Very simple definition is given by Croxton and Cowden. Statistics is a science which collect, analysis, and interpret the numerical data. So statistics is a science. Science means specialized knowledge. Science means specialized knowledge. And science is on the basis of rules, regulation, and principles. So statistics is also dependent on rules and regulations. And first, a collection of data. First, we have to collect this data and then we have to analyze. जैसे आप 8th स्टैंडर्ड या 7th के अंदर थे, तो जब स्कूल के अंदर मार्क्स मिलने वाले थे, फर्स्ट एग्जाम, सेकंड एग्जाम, तो पहले आपने मार्क्स का डेटा कलेक्ट किया. देन एनालिसिस, आपने एनालिसिस किया कि भाई ये 7 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट और इतने मार्क्स, तो कितने परसेंटेज आए, तो एनालिसिस कर दिया. एंड देन इंटरप्रेट. इंटरप्रेट का मतलब फिर आपने ये सोचा कि भाई क्लास में मेरा रैंक कौन सा आ रहा है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ. तो इंटरप्रिटेशन. जैसे ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक, गवर्नमेंट कोरोना का डेटा पहले कलेक्ट करती है, फिर उसका एनालिसिस करती है कि भाई नंबर ऑफ डेथ, नंबर ऑफ रिकवरी ऑफ कोरोना पेशेंट, एंड देयर इंटरप्रिटेशन. जहाँ पर कोरोना के पेशेंट कम है वहाँ पर कोई लॉकडाउन नहीं है, और जहाँ पर कोरोना के पेशेंट ज़्यादा है वहाँ पर स्ट्रिक्टली लॉकडाउन है. सो दिस इज definition given by Croxton and Cowden. Statistics is a science which collect, analysis, interpretation the numerical data. What is data? The set of all observation obtained by population inquiry or sample inquiry is called data. The set of all observation means all informations. जब आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए and you collect a information by any inspection, it is called data. जैसे आपको 11th के अंदर एडमिशन लेना है, तो आप स्कूल के अंदर गए और खुद इंस्पेक्शन किया, टीचर क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, स्कूल का टाइमिंग क्या है. सो व्हेन यू कलेक्टेड अ इंफॉर्मेशन about any inquiry, तो that is called data. आप पॉपुलेशन इंक्वायरी कर सकते हो या सैंपल इंक्वायरी भी कर सकते हो. जैसे मोबाइल लेना है तो मोबाइल की आप इंक्वायरी कर सकते हो. तो सैमसंग का मोबाइल है, उसके कौन से मॉडल है, उसकी क्या प्राइस है, कितना रैम है, कितना इंटरनल स्टोरेज है, रियलमी का क्या चार्ज है, आईफोन का क्या चार्ज है. तो आपने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की तो वो आपके लिए डेटा हो जाएगा. द सेट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑब्टेन बाय पॉपुलेशन इंक्वायरी और सैंपल इंक्वायरी इज कॉल्ड डेटा. जैसे क्लास टीचर को जानना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, तो पूरे जितने भी स्टूडेंट हैं सबकी वो इंक्वायरी करता है, वो पॉपुलेशन इंक्वायरी करता है और फिर उसके बाद डेटा आ जाता है. सैंपल इंक्वायरी, जब लेबोरेटरी के अंदर ब्लड का इंस्पेक्शन होता है तो वो सैंपल लेता है, और सैंपल इंक्वायरी से भी डेटा तो कलेक्ट हो ही जाता है. तो पॉपुलेशन इंक्वायरी करके भी डेटा ले सकते हो, सैंपल इंक्वायरी करके भी ले सकते हो. व्हाट इज क्वेश्चनरी?
A list of questions regarding the information is prepared in a logical order. A space against each question is provided for the answer. The schedule of questions prepared in this manner is called a questionnaire. So a list of all logical questions arranged in a logical form and space is provided for giving the answer. So list of question is called questionnaire. आपको जो भी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए उसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चन रेडी कर दो, फिर उसको लॉजिकल फॉर्म के अंदर आप अच्छे से अरेंज कर दो और हर क्वेश्चन के सामने क्वेश्चन का आंसर के लिए आप स्पेस छोड़ दो। तो आपने जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन रेडी किया है दैट इज कॉल्ड क्वेश्चनरी, वो आपके लिए क्वेश्चनरी हो जाएगी। आफ्टर प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चनरी देयर आर टू चॉइस। एक तो एक है कि जिससे इंफॉर्मेशन लेनी है उसको क्वेश्चनरी बाय पोस्ट भेज सकते हो। सेकंड ये है कि क्वेश्चनरी के साथ आप न्यूमरेटर को भेज सकते हो और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। व्हाट इज अनपब्लिश्ड डेटा? Some of the data are collected and complied but not published. However, institute keep the record for such data. For their purpose, such data are called unpublished data. कई बार क्या होता है कि डेटा कलेक्ट तो करते हैं, उसका रिकॉर्ड भी रहता है, लेकिन वो पब्लिश नहीं करते, वो अनपब्लिश्ड हो जाता है। जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स की नोटबुक बनाई है, उसके अंदर डेफिनेशन भी लिखी है, लेकिन आप कभी उसको पब्लिश नहीं करोगे न्यूज़पेपर में या व्हाट्सएप में, तो वो अनपब्लिश्ड डेटा हो जाएगा। अगर मेरे को वो चाहिए तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आपने अगर होमवर्क किया तो मेरे को व्हाट्सएप करो, तो वहां से आपका अनपब्लिश्ड डेटा मेरे को मिलेगा। जब तक आप नोट के अंदर लिखते हो वो कभी आप पब्लिश नहीं करते तो अनपब्लिश्ड है। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा भाई होमवर्क मेरे को सेंड करो चलो, तो आप मेरे को दोगे तो वहां से डेटा मिल जाएगा। जैसे कोई स्कूल है, जैसे न्यू इंग्लिश है या फेथ हायर सेकेंडरी या ग्लोरियस है, आपको जानना है हाउ मेनी टीचर्स कितने हैं, उनकी एज क्या है, उनकी सैलरी क्या है, उनकी एक्सपीरियंस क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो सब डेटा प्रिंसिपल के पास रिकॉर्ड होगा, लेकिन वो कभी वो डेटा पब्लिश नहीं करते। लेकिन आप अगर रिक्वेस्ट करोगे कि आपका डेटा हमारे लिए इंफॉर्मेशन यूजफुल है तो वहां से मिल जाएगा। सो दैट इज अनपब्लिश्ड डेटा। सम ऑफ द डेटा आर कलेक्टेड एंड कंप्लाइड बट नॉट पब्लिश्ड एंड दिस इज कॉल्ड अनपब्लिश्ड। हाउएवर इंस्टीट्यूट कीप द रिकॉर्ड ऑफ सच डेटा, क्योंकि इंस्टीट्यूट को तो रिकॉर्ड रखना ही पड़ेगा। जैसे साबर डेयरी के अंदर कितने वर्कर्स हैं, उनकी सैलरी क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो डेटा उन्होंने कलेक्ट किया है, लेकिन वो कभी पब्लिश नहीं करेंगे, लेकिन मैनेजर या डायरेक्टर के पास सब रिकॉर्ड होगा। दैट इज अनपब्लिश्ड डेटा। व्हाट इज अ वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स? a unit characteristics which differ from person to person and can be expressed numerically or qualitatively is called variable characteristics. Example, height of student, income of workers. So variable, vary means different, a characteristics which varies from unit to unit, a characteristics which varies from unit to unit, person to person, that is called variable characteristics. ऐसा कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो यूनिट टू यूनिट चेंज होता रहता है, पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरी मीन्स डिफरेंट। जैसे हाइट ऑफ स्टूडेंट, तो जितने भी स्टूडेंट है सबकी हाइट सेम नहीं होगी, सबके अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहेगा। 5.5, 5.6, एग्जैक्टली 6 फीट, 6.2, 6.1। जैसे वेट, तो सभी स्टूडेंट का वेट सेम नहीं होगा, इट इज डिफर फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट।
about their marks, about their percentage. So it is called variable. Vary मतलब different, सबके पास different characteristics है, तो variable है. A unit characteristics which differ from person to person and can be expressed numerically भी हो सकता है एंड क्वालिटेटिवली हो सकता है. जैसे क्लेवरनेस, तो यहां पर जितने स्टूडेंट हैं सबकी क्लेवरनेस सेम नहीं है, वो डिफरेंट होगी स्टूडेंट टू स्टूडेंट. किसी की क्लेवरनेस ज्यादा है, किसी की कम हो सकती है. न्यूमेरिकल हो सकता है, किसी के परसेंटेज, किसी के 90, किसी के 92, किसी के 82, किसी के 75. दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स. व्हाट इज एट्रीब्यूट? A unique characteristics which differ from person to person but cannot be measured in numbers is called an attribute. Religion of person. Attribute के अंदर आप क्वालिटेटिव की डेफिनेशन भी लिख सकते हो. A data which is non-numeric, that is called attribute. तो जो भी आपको डेटा मिलता है लेकिन आप उसको मेजरमेंट नंबर्स के अंदर नहीं कर सकते, दैट इज एट्रीब्यूट. जैसे ऑनेस्टी है तो आप नंबर्स के अंदर उसको मेजर नहीं कर सकते. क्लेवरनेस है, उसको नंबर्स के अंदर मेजर नहीं कर सकते. लव, फीलिंग्स, आप उसको नंबर्स के अंदर मेजर नहीं कर सकते. दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव डेटा, और उसको आप एट्रीब्यूट भी कह सकते हो. And last question, what is the role of P.C. Mahalanobis in development of statistics in India? The well-known Indian statistician Professor P.C. Mahalanobis made valuable contribution to the development of modern statistics in India. The first Indian Statistical Institute, ISI, was established by him at Calcutta in 1931. For the first time, he started postgraduate in statistics, Calcutta University in 1941. In 1950, government had approved a national sample survey which was proposed by Mahalanobis. Thereafter, first stage of collection of data took place in October 1950. तो इंडिया के अंदर जो स्टैटिस्टिक्स का जो ग्रोथ है उसका 100% कॉन्ट्रीब्यूशन पीसी महालनोबिस को जाएगा. उसने बहुत सिग्निफिकेंट रोल लिया है. फर्स्ट इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इंडिया में स्टार्ट हुई 1931 एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय पीसी महालनोबिस. फर्स्ट टाइम स्टैटिस्टिक्स पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ाना स्टार्ट हुआ कलकत्ता के अंदर 1941. उससे पहले कभी स्टैटिस्टिक्स कॉलेज के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट में नहीं आता था, तो पीसी महालनोबिस ने स्टार्ट करवाया. इन 1950 गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ नेशनल सैंपल सर्वे. आज जो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन की स्टडी होती है NSSO, उसका भी प्रपोजल पीसी महालनोबिस ने दिया था कि भाई गवर्नमेंट के पास एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए वो डेटा कलेक्ट करे. तो 1950 में गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव भी किया था. और इंडिया के अंदर फर्स्ट जो पॉपुलेशन की इंक्वायरी हुई थी, thereafter first stage of collection of data took place in October 1950. फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने इंडिया के बारे में अबाउट लिटरेसी रेट, अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट 1950 में स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने. सो these are the role of PC Mahalanobis in development in statistics in India.